This is your first show with the Zee TV. How do you feel to be associated with Zee? So under Cinevista, which is my father's company, we've done shows for Zee before. As an independent producer, Yeah. because we've just gone independent with Icha a few months ago, and this is my next show which is launching, which is 3 months ago actually we've gone independent. So for me it's a big challenge because my kind of television that I do personally as what we create is not Zee TV. When you say Zee TV has a certain image of a certain kind of shows, certain kind of dramas, which is not my language of as a creator of telling television at all. So I am very fortunate that when I narrated this show to Zee TV, they believed in our vision, you know, in Raghu sir and my vision, and they bought it. Or else the show wouldn't have happened. It was the faith of the entire programming team that said, यार ये तो तुम अगेंस्ट द ग्रेन ही हमको कहानी सुना रहे हो, ये तो ऐसा होता ही नहीं है. तो मैं बोला सर पर मुझे ऐसा ही करना है, एंड यू नो आई बिलीव इन दिस स्टोरी. सो तब जाके बना ये. Sir, the show has a talented star cast. What do you say about this? Sir, because it has a talented star, because we needed actors for the show. I would say more than stars, they are actors first. They're performers first. All of them are very, very accomplished actors, and you will see that in the scenes which are written. Because एक scene लिखी जाती है, हमारी writers team एक scene लिखती है, पर उस scene को उसके ऊपर ले जाने के लिए आपको एक actor की ज़रूरत पड़ती है, star की से नहीं. Star will add some value because of the popularity. So I think we're fortunate that we've got these people, and I think in my repertoire of work, whatever I've done from Sanjeevni to Ek Hasina Thi to Ek Hazaro, we've always had good faces and appealing faces, and all of them are really, really appealing. So, Okay, thank you. Best of luck for the show. thank you, sir. सिद्धार्थ सर, आज कहा जाता है कि आज नागिन शोज चलते हैं, स्पेशल इफेक्ट्स वाले शो चलते हैं, और जेनी कैमरा एंगल्स वगैरह. हाँ. तो इस वक्त आपका एक फैमिली शो आ रहा है. हाँ. तो आपको कितना एक्सपेक्टेशन है कि लोग इसे पसंद करें? सर मेरा ये मानना है कि अच्छी कहानियाँ चलती हैं. नागिन शो में तो एक नागार्जुन भी आया तो जो चल के आके चले गया, और वो विश्वकन्या भी आके चले गया, और फिर कुछ और भी नागिन के शोज आके जो चले गए. इच्छा प्यारी इसलिए चला क्योंकि वो नागिन से हटके था, नागिन का उल्टा था. एक हैप्पी नागिन आ गई. ये क्या होगी बात. नागिन चल रहा है क्योंकि एक फॉर्मूला ऑफ रिवेंज एक ब्रांड है, बट उसके बीच में जितने भी नागिन के शोज आए वो नहीं चले, वो आके चल गए, निकल गए. तो अच्छी कहानियाँ चलती हैं, अच्छी कहानियाँ जिस पे आप खोट ना करें, और वो खोट दिख जाता है क्योंकि कैमरा इज़ द बिगेस्ट क्रिटिक मोर देन द ऑडियंस. वो सब कुछ पकड़ लेता है. चाहे आप कुछ भी कर लो, एक लेंस पकड़ ही लेगा आपकी बेईमानी. तो वो फ्रॉम द राइटिंग टीम टू द प्रोडक्शन टीम टू माई एक्टर्स टू माई टेक्नीशियंस, माई डायरेक्टर एंड माई DOP एंड एवरीबडी हु इज़ नॉट हियर, अगर वो डिलीवरी ना करे तो फिर वो शो ऑडियंस बोलेगा यार ये तो खींच रहा है, ये तो बोरिंग हो रहा है, अब तो ये फ्लैशेस डाल रहे हैं, अब तो ये कुछ और ही कर रहे हैं, फॉर्मूला में जा रहे हैं, और वो स्विच ऑफ कर देते हैं. आज हर किसी के हाथ में रिमोट है बदलने को, और बहुत ऑप्शंस हैं. तो अच्छी कहानियाँ ही चलती है सर एंड में. आपके सिनेस्टार्स के काफी मशहूर शोज आ गए, जैसे गुलगुलशन गुलफाम है जी. तो उस तरह के शोज आप इससे रीमेक करेंगे? मेरी ख्वाहिश है कि मैं ऐसा करूं. मैं उसी पे तो बड़ा हुआ हूँ. कथा सागर, गुलगुलशन गुलफाम, जुनून, ये ऐसे कहानियाँ थी जो क्लासिक्स थे, और जो मेरे फादर और मेरे मामा ने बनाए, वो इतने पैशन से बनाए. वही पैशन मैंने इम्बाइब किया है. आई हैव सीन माई फादर विथ 32 rupees in his pocket with 2 children on the road when his career was not there and he started Cinevistas. So I've seen him start from there and come to build Cinevista. And that has only happened because of his goodwill and his passion towards creating content. And I am really hoping that that same niceness I imbibe from them, and also keep that passion alive to say good stories. अच्छी कहानियाँ कहो तो बाकी सब हो जाएगा सर. Good evening, everyone. I have a question for our actors. It's a common question. Writing, dialogues, and screenplay of a show. How does it enhance your acting, or how does it affect the actors? जो मतलब dialogues होते हैं, जो writers लिखते हैं, वो एक actor को कैसे help करते हैं?
I think on a normal day, when you meet any of us outside, is what we are without everything that you mentioned. So for us to transform into a character, that is what is needed. Like Sudeep said, TV is a writer's medium. It's true, it is. And people remember characters. People remember names of characters for a reason, because they've been written so well. So honestly, if you just take the actor out and place somebody else there, the character will still be fantastic if it's written beautifully. And I think the dialogue writers, the script writers, the writer, the creative on any, the costume, you know, people who give you the costumes and the look, all of this makes what we do as actors, whether it's theatre, film or TV. Well, I totally agree with her, you know. आप अगर कोई सीन है और आप बोलें कि यार इसमें आप अपना कुछ बना लो, हम वैसा नहीं बना पाएंगे जो ये बनाते हैं, हम वैसा लिख नहीं पाएंगे जो हम बोलते हैं. It's kudos to them, they write so beautifully that that's how, you know, we are liked. हमें लोग पसंद करते हैं because हम वो जो लाइनें बोलते हैं वो हमें बदल देती हैं. हम as she said, हम वो नहीं हैं. So dialogues are everything. The story, it just changes everything. हम वैसे नहीं है. जो हमें मिलता है हम कोशिश करते हैं उसे justify करें जितनी beautifully ये लिखते हैं. And that's what we try to do. It's just it's their game. And thank you so much for a lovely team. I think all we have to do is just say it correctly. Yeah. I think that's all. We वैसा have भी to- बोल दे तो मुद्दा वो भी क्या सही है हो scene जाएगा. का? जो ये जैसा लिखते हैं अगर नॉर्मली भी बोलते हैं तो वो भी सही हो जाएगा. No, let's not be little actors also, but yeah, we're a team. Any further questions, guys? Please raise your hands. सिद्धार्थ, कितना फ़र्क देखते हैं टेलीविज़न में और 70 mm पर, क्योंकि दोनों का एक्सपीरियंस है अच्छा खासा आपको, और अगर टेलीविज़न की बात करें तो क्या क्राइटेरिया था आपका इस शो को प्रोड्यूस करने के लिए? कितना फ़र्क देखता हूँ? फ़र्क तो बहुत है. और मौक़ों की भी फ़र्क है. 70 mm पे आपको सिर्फ एक मौका मिलता है, वो वीकेंड पे आपकी कहानी कही जाती है और बॉक्स ऑफिस की वर्डिक्ट आ जाती है. टेलीविज़न पे आपको दोबारा मौका मिलता है और दोबारा मौका मिलता है और दोबारा मौका मिलता है. उसके बाद आपको बोलता है आप अब रास्ता नापिए. तो ऑल्सो टेलीविज़न फिल्म में वो कहानी कही जानी चाहिए जिसकी कहानी की सीमा सीमित हो 2 घंटे की. टेलीविज़न में अगर आप किरदारों को पेश कर रहे हैं, कैरेक्टर्स को बना रहे हैं और उनकी अपनी निजी ज़िंदगी की कहानी कह रहे हैं, तो फिर एक लॉन्जिटिविटी की कहानी बनती है जिसमें ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं. तो hence that's the difference between film and television. Sorry, I didn't get the next question. I forgot that. दूसरा सवाल ये था कि मतलब सवाल में थोड़ा सा और चेंज करता हूँ और क्लैरिफाई करता हूँ जी. कि दोनों में से इजी जो है वो क्या बेहतर लगता है, और क्राइटेरिया क्या था आपको शो का प्रोड्यूस करने का? दोनों में इजी तो कुछ भी नहीं है. आज के टाइम में यू आर नोन ऑन योर लास्ट वर्क. मेड बी फिल्म, मेड बी टेलीविजन. आपकी टीवी शो नहीं चली, आप 4 महीने 6 महीने शायद 1 साल भी घर बैठे रहे. आपकी फिल्म नहीं चली और आपको दोबारा मौका नहीं मिला, तो फिर आपकी फिल्म करियर ख़त्म. यहाँ पे जो कहते हैं ना, एवरीबडी इज नो वन इज इंडिस्पेंसिबल. दैट अप्लाइज वेरी वेरी स्ट्रांगली इन दिस इंडस्ट्री, because there's someone waiting to take your spot and someone more talented than you waiting to take your spot if you don't excel in your work. तो आई थिंक सबसे बड़ा क्राइटेरिया ये है कि अपने काम से बेईमानी ना करो, चाहे वो नंबर आए या ना आए. किसी को ये बोलने का मौका नहीं दो कि गंदा शो बनाया तुमने, ये गंदी फिल्म बनाई तुमने. तुम अच्छा काम कर लो, तुम्हें काम मिलता रहेगा. और अगर तुम गंदा काम करोगे तो तुम्हारी खोट पकड़ी जाएगी और आपको बोलेंगे कि रास्ता नापिए, तो कोई और है. सिंपल इज दैट. थैंक यू. Siddharth, my question to you. Diksha and Janvi are playing negative, good role, good lady and bad lady in this serial. आगे चल के twist होके gonna be something different, or she'll be playing the same good lady and bad lady? Sir, I'm gonna give this question on to my story writer here, Raghuveer Shekhawat. I'll put him in the spot because you put me in the spot.
मुझे लगता है कि कुछ आदतें आपकी बदल सकती है, लेकिन आपके अंदर का जो इंसान है वो बदल नहीं सकता. तो आई थिंक ये आपके सवाल का जवाब है. Thank you. We have a gentleman at the back. Yes, I want to ask No. Oh. I want to ask the writer. In your like mostly series, the bad is too bad and the good is too bad. So how you write that? How you connect like something bad? It Good should is- be something good in that, or in good something bad is there. You know? You mean the grey? You mean characters should be grey, not black and white? Yeah, I mean the bad is too bad. Totally nothing good in that. So how you mostly write that way? What inspire you to, you know? देखिए, कैरेक्टर्स तो हमारे आसपास के मिल जाते हैं, आप उन्हीं को पकड़. मैं एक कहानी में बताता हूँ. एक कहानी के लिए जब हम कहानी सोचते हैं तो हमारे लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है इमेजिनेशन एंड एग्जैजरेशन. एक वर्कशॉप अटेंड की थी मैंने, जहाँ पे मुझे एक चीज़ समझाई गई थी कि हॉलीवुड राइटिंग में और यहाँ की राइटिंग में क्या फ़र्क है. वहाँ क्या रोटी कपड़ा और मकान की चिंता नहीं है कंपैरेटिवली, तो लोग सेटल्ड है लाइफ में. यहाँ पे इतनी सारी परेशानियों से जूझते रहते हैं कि जब तक आप उनको पकड़ के हिलाओ नहीं कि देख कितना बुरा हो रहा है, तब तक उनको रजिस्टर नहीं होती ये चीज़ें. सो दैट्स द रीज़न वाई मैग्नीट्यूड ऑफ गुडनेस या अगलीनेस जो है वो हमारे यहाँ पे हाई होती है. हमारे यहाँ पे हाई ड्रामा होता है, ओवर द टॉप ड्रामा हल्का सा चलता है. दैट रीज़न अप्लाइज टू गुड और बैड का फंडा. सेकेंड, जो अगर मैं समझाऊँ सही तो आप ग्रे कैरेक्टर्स की अगर बात कर रहे हैं तो ग्रे कैरेक्टर्स को समझने के लिए एक सेंसिबिलिटी बहुत तगड़ी चाहिए होती है. हमारा टीवी जो है वो सिर्फ मुंबई में नहीं है. हमारा टीवी एक पटना से 200 किलोमीटर अंदर गांव में भी एक छोटे से घर में भी है. तो हमें सबकी सेंसिबिलिटीज बैलेंस करनी पड़ती है. हमें देखना पड़ता है कि उससे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है. तो फॉर दैट रीज़न हमारे कैरेक्टर्स थोड़े से एक्सट्रीम एंड्स पे होते हैं.